Khalil Azab. I'm coming with the delegation. I'm the only one actually as a delegation from UAE, coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. It's a wonderful You event. are here to witness out a religious gathering, world's biggest religious gathering, Mahakumbh, Yes, happening yes. once in 144 years. It's one everyone like everyone 44 years, and also the gathering is happening every 12 years, right? Yes. So there is Mahakumbh and half Kumbh. There is Kumbh and half Kumbh, right? Yeah. So that's what I learned every 12 years and sometimes every 6 years in four different cities. And what great gathering. I mean, Kumbh Mela, great country. Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Modi, please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza, peace to Ukraine, peace to Russia. Om Namah Shivaya, Hare Krishna, Krishna Hare. मैं इससे खूबसूरत इंटरव्यू, इससे खूबसूरत शब्द, इससे सार्थक शब्द और मान ही नहीं सकती कि महाकुंभ में आकर शांति सिर्फ खुद के लिए, आत्मा की शुद्धि सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ खुद के लिए, लेकिन एक एक शब्द क्रिस्टीना आपके इस देश के लिए, विश्व के लिए, ये सोच यहाँ पर. थैंक यू सो मच. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे। इस बार महाकुंभ में विदेशी मेहमान भी शामिल हो रहे। यूएई से आई सैली अल अजाब, अकेली मुस्लिम महिलाएं महाकुंभ को देखकर वो काफी भावुक हो गई और उन्होंने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। उन्होंने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बताया और इसे एकता का प्रतीक बताया। सैली ने कहा कि इस आयोजन को देखकर वो हैरान है। सैली महाकुंभ के धार्मिक महत्व और भारतीय संस्कृति के बारे में समझा। उन्होंने महाकुंभ आयोजन को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। it's the biggest in the world, 400 million people in 1 month. Where you can find this, except in India, of course. What you would like to say about the arrangements made by those Look, I will tell you something. I mean, if this is happening somewhere else, you will find a mess. But here, well organized to another level. I mean, look at the boats around you. Look at everything. Everyone in his own place. The safety is there. Police with there. The government arranged very, very well. I mean, it's amazing. It's amazing. What message you are taking from the holy city Prayagraj? सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञालयज्ञ सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं. To the Middle East. The message. I mean, look at the gathering. They are gathering for a purpose. What an amazing purpose. I hope that everyone in the world, not only in the UAE, gathers for that same purpose of being united. They are united here for a purpose today, whether it's religious or no. In other places, let's be united. It's amazing. It's a great lesson for all of us. What we call it Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one. The whole world is One. one. Yeah, definitely. I mean, look at this. I never, ever in my whole life, and I'm a traveler all over the world, so such crowdness and gathering. It's wonderful. जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ है, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये सब्जी इटली से हूँ। आप इटली से हैं? हाँ जी। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अरे पूरा नहीं, थोड़ा सा। कैसा लगा महाकुंभ आपको? अरे बहुत क्या बोलते हैं, खुश और मस्ती है। खुश और मस्त है। और शांत भी है। शांत है। जी। पहली बार आए हैं आप? ये हमारा पहली बार है। कैसा लगा पूरा ये जो यहाँ की व्यवस्थाएं हुई है, हाउस जो अरेंजमेंट यहाँ पे है, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं श्रद्धालु? सब परफेक्ट। खाना अच्छा है, अरेंजमेंट है गुड, सब ठीक है। खाने में क्या अच्छा लगा? अरे हिंदुस्तानी का खाना मेरा फेवरेट। उसमें भी क्या अच्छा लगा? आपने चाट खाई यहाँ की? सब पूरी सब्जी दाल। आपने यहाँ समोसे खाए?
अभी नहीं, लेकिन इंटरव्यू के बाद खाएंगे। कितने दिन से यहाँ पे? Which is happening right now, right? But you correct me. You also take a part in the Maha Snan, Amrit Snan. Yeah, the dips. Yeah, no, this morning we didn't, but we're gonna do the dip today later. ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं, और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं भारत उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज हो कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, कोई चोरी ना हो जाए और भी किसी तरीके की बीमारी ना हो, आग ना लगे। मतलब इस जितना बड़ा ये मेला है, जितना बड़ा ये त्योहार है, भारत की जो परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है, वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे। इसलिए मैं ये एक बहुत जाइजेंटिक एक्सरसाइज है। दिस गिव्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भारत इज नॉट एन डिसऑर्डरली प्लेस, कि भारत में ऑर्डर में लोग स्वयं से कैसे ऑर्डर रखते हैं। इतनी बड़ी डिसिप्लिन उनकी कि एक चीज इधर से उधर नहीं होती है। एक अगर स्टैम्पेड और ये हो जाए, ये छोटे मोटे दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेटली हो सकती हैं, लेकिन 44 करोड़, 40 करोड़, 30-32 करोड़ लोग आ रहे हैं और लार्जली वो एकदम स्मूथली चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसमें सिर्फ इसमें भारत के लोग नहीं आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं। भाई देखिए, हज उम्र के लिए लोग जाते हैं तो यहाँ से भी यही सोच के जाते हैं, या बहुत से लोग, हर कोई नहीं, वो चाहते हैं कि वो वापस ना आए और वहीं पर रहे। ऐसी सोच, ऐसी बात सुनी है मैंने। नहीं, हमारे यहाँ कुंभ में ये लोग नहीं कहते जाते कि हम वहीं लटक जाए, लेकिन ये कि अगर मृत्यु होती है अनफॉर्चुनेट रीजन से, तो वो मोक्ष है, वो मृत्यु नहीं है। जैसे बनारस में लोग आते हैं अपना देह त्याग करने, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो वो आते हैं बनारस शहर में, जहां से मैं रहने वाला हूँ, वहां अपने देह का त्याग करना, क्योंकि माना जाता है कि यदि आप मणिकर्णिका घाट पे आपका बॉडी क्रिमेट किया गया, आपको वहां पे शमशान में जलाया गया, तो आप फिर मृत्यु लोक पे नहीं आते, यानी आप वापस नहीं आते हो। एंड देन यू सिंपली योर सोल गेट निर्वाणा, यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ। तो वो एक तमन्ना रहती है। तो प्रयागराज मोक्ष की धरती है, और ये कुंभ जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। मृत्यु तो किसी को होती ही नहीं। जी।